Find out the oxidation state of the underlined element. Okay. I'm hopeful you know the rules how to find the oxidation state. Just J, D. I'll solve these two parts for you. Suppose for nitrogen, you want to find the पहले oxidation. हो गए Yes? हो गए Okay. You want to find the oxidation state of nitrogen. Take it as X. Oxidation state of potassium is 1 because potassium is alkali metal. It is always 1. Plus 3 into minus 2 equal to 0. क्या आ जाएगा बच्चे सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू +5. On similar pattern, बाकी देखो Fe2O3, consider it as 2x plus 3 oxidation state of oxygen is -2, 0, 2x equal to 6, x equal to 3. Okay. देखो बाकी ट्राई करो ऑल अदर पार्ट्स. किसी की कंप्लीट हो गया तो बोल भी दो. एक और सॉल्व कर रहा हूं दिस पार्ट. कंसिडर इट एज x, potassium is +1, 4 oxidation state of oxygen -2 equal to 0, +7, x is +7. Okay. So one by one, Amanveer, in first case, what is the oxidation state of sulfur? सर मैं पिक्चर पिक्चर तो शुरू करता था करना. हाँ जी बोलो केड़ा पार्ट करें. सर जी हो गया, जी जी कर लिया, एच हो गया. ओके बोलो H is एच इज -6. -6 is wrong. G जी सर 2. 2, that is okay. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2. ठीक है. दिस वन इज 0, O3 only element. Remember, in pure state, oxidation state of the element is 0. ओके सर. Okay. Yes, next. Ishita, A part done. Ishita, यस सर हाँ जी क्या आया ऑक्सीडेशन स्टेट? सर 6 +6. गुड. ठीक है. अनु, बी पार्ट. सर +4 +4 wrong है. Anyone else?
Sir, B 5 yes, plus 5 -6. -6 is wrong. कोई और भी बोल रहा था कुछ? सर मैं सर कहता प्लस 5 आई है। +5 ठीक है, +5 इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, हरगुन। सर -5 सॉरी 5 सिंपल 5 सिंपल 5 ठीक है, +5 ओके। गुरकीरत, नेक्स्ट ई पार्ट। सर -2 नो, +4 यस +4 ओके ठीक है, +4। नेक्स्ट जे पार्ट, JKL। 2 मिनट्स ले लो, मैं एक पार्ट कर देता हूँ इसमें से। सपोज जे सर पार्ट, जे पार्ट का 4 होएगा। हाँ आंसर इज 4, बट फिर भी देख लो बच्चे। कंसिडर दिस एज x, जिसे फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 equal to -2. This -2 is the charge present on the radical. Okay, when you solve x, -6 equal to -2, x is +4. Oxidation state of carbon is +4. You'll solve this like J part as this. Next K, L, take your time. सर के का 2 होएगा +2 सर। Yes, +2 +2. Very good. K is +2. And what about oxygen? सर इस Oxygen is -1 -1. Oxygen is -1. ठीक है, because it is peroxide. Remember this. यहाँ पे वो मैथमेटिकल रूल नहीं चलेगा. You have to remember. Dushant, next. This phosphorus. 6. No, wrong. चलो one more time. सर -7 No, बिल्कुल भी नहीं. सर Sir, Five. +5. Take it as oxidation state of phosphorus as X. Hydrogen is +1. 4 into -2 equal to -1. This -1. X is +5. सर इक्वल टू के बाद 1 लिखा है। -1. Okay. Oxidation state of phosphorus is +5. And remember, maximum possible oxidation state of phosphorus is +5. Reason है, phosphorus has atomic number 15, 285. It has only 5 valence electrons. सर Yeah. 6 नहीं होगा ये? Yes. 6 नहीं होगा ये? इसे सॉल्व करके हाँ। -8 +1 -7 फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा +7 -1 6। HPO3. ओके, नहीं मैंने, तू ठीक बोल रहा है, मेरा ही गलत है लिखा हुआ. दिस इज -2 बच्चे, चेंज कर. दुष्यंत तेरा ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट 6 आना था, बट वो आयन ही गलत लिखा हुआ है. HPO4 2 नेगेटिव होता है, वो चार्ज रॉन्ग लिखा हुआ है. चार्ज करेक्ट कर लो.
ठीक है दुष्यंत, ठीक है। सो जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो चलो एक पार्ट आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करा है। बैक टू बेसिक्स, what is oxidation, what are redox reaction, reduction and oxidation. One more time, differentiate between oxidation and reduction. फुल एंड फाइनल करते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी तक आपको क्या पता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? यही पता है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is reduction, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, what is oxidation and reduction? Increase in oxidation number is oxidation, and decrease in oxidation number is reduction, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन, अगर कम हो रहा है देन इट इज रिडक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल से करके देख लो। Fe2 positive plus MnO4 negative, Fe3 positive plus Mn2 positive. Predict on the basis of oxidation number, above reaction is a redox reaction. Yeah, justify. The following reaction is redox reaction, but only on the basis ऑक्सीडेशन नंबर, और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना। Only in this context can you justify this reaction as redox reaction. ये पार्ट मैं करवा रहा हूँ, यहां से देखो। सर इससे Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव तक वो हो रही है ऑक्सीडेशन, हाँ जी, और MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव तक रिडक्शन हो ठीक रही है, है। ये ऑक्सीडेशन है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इंक्रीजेज, मैं सिंबल डालता हूं ये इंक्रीजेज का, इंक्रीजेज फ्रॉम +2 to +3। ओके, सेकेंड टाइम बच्चे इसका मैंगनीज का फाइंड करके देख लो। -7 आ रहा है। -7 नहीं आएगा बच्चे, +7 आएगा, यस सर, +7 सर। ठीक है। +7 से कितना हो रहा है? +2, यस सर। ये क्या है?
this is reduction because oxidation number of manganese decreases from +7 to +2, +7 to +2। एक बार देख लो, कुछ छोटे मोटे कोई भी डाउट्स लेके आओ दिमाग में। सर यस, जब ऑक्सीडाइजेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडाइजेशन क्यों होती है, मतलब बोलते क्यों हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि +2 to +3। ठीक है दुष्यंत, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन। ओके चलो एक और देखो, डिफरेंट इसी बेसिस पे जस्टिफाई करना है दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और फॉलोइंग रिएक्शन इज redox reaction। Cu2O plus Cu2S, Cu2O plus Cu2S, ये सेकेंड पार्ट है, चेंजेस टू Cu plus SO2। तो बैलेंस्ड है, ठीक है रिएक्शन। Justify this reaction is a redox reaction on the basis of oxidation state, oxidation number method। Identify the oxidation states। सर वो Cu2O से Cu तक तो रिडक्शन होएगी। पहले ना देखो करना क्या है, सबसे पहले नंबर दे लो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे लो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। ठीक है, जैसे कॉपर की आपने फाइंड करनी है, कॉपर की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 2x, और एक ऑक्सीजन है -2 = 0, x इज +1 है बच्चे कॉपर की, ऑक्सीजन -2, ऐसे ही यहाँ पे फाइंड करोगे कॉपर +1 और सल्फर -2। इस साइड पे कॉपर क्या है 0 और सल्फर की फाइंड कर लो, फिर से x, ये आ गया +4, +4 0। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर ली सारे एलिमेंट्स की। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब आइडेंटिफाई करो रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, दोनों में से कहीं से भी एरो ले लो, यहाँ पे क्या बोलोगे इसे रिडक्शन बिकॉज डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर decreases from +1 to 0। सर जब हम जैसे ये निकालते हैं तो जो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं करना उसका होगा? कोई मतलब नहीं है यहाँ पे,
यूजलेस Okay, sir. यूजलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सल्फर की, Oxidation. दिस इज ऑक्सीडेशन, बिकॉज oxidation number of sulfur increases from -2 to +6. Okay, that is why it is Sir, +4 नहीं है? ओके। SO2 था, मैं SO3 लिख लिया, ठीक है, +4 कर लो। ओके, ये जस्टिफिकेशंस अगर देनी है। फिर है एक क्वेश्चन, कंसिडर फ्लोरीन, सीजियम, आयोडीन एंड नियॉन, ठीक है। विच एलिमेंट shows सर ये दूसरा कौन सा सीजियम? हाँ सीजियम shows only positive oxidation state। सीजियम। बच्चों एक मिनट, only negative oxidation state। only, अच्छा only नहीं, both positive and negative oxidation state। zero oxidation state। ठीक है, ये है। एंड मेक दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार 2 मार्क क्वेश्चंस में आया है, सिर्फ वर्ड लिखने हैं 4। सो फर्स्ट आंसर इज, एक बार इकट्ठे पढ़ लो, देख लो। ओके, चेक करें। Anu, which element shows only positive oxidation state? Sir, cesium. Arjun, which element shows only negative oxidation state? Fluorine and iodine. Yes? Fluorine and iodine. हाँ, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी कर सकते हो, रिपीट भी हो सकता है, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। ओके, थर्ड, दुष्यंत, which shows both positive and negative oxidation state? Iodine.
आईएस। आयोडीन। आगे कुछ बोल, और भी बोला कोई एलिमेंट? नहीं कुछ नहीं। ओके हाँ जी पीयूष, विच एलिमेंट शोज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? नो। Sana, which element shows zero oxidation state? Hello. Is that Neon. neon? Okay. ठीक है. Okay, repeat. Same question. Harshil, which element shows only positive oxidation state? सर आयोडीन। First, iodine. Hargun, which element shows only negative oxidation state? सर यही दो नहीं है? हाँ तो बोल दे, फ्लोरीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन और आयोडीन। ओके ठीक है. सिमरजोत, both positive and negative oxidation states. नियॉन और आयोडीन। नियॉन एंड आयोडीन, ये नियॉन एंड आयोडीन देखा, एडिशन होगी. नेक्स्ट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. गुरकीरत. सर नियॉन। नियॉन ओनली, ठीक है. अब आंसर को ध्यान से पढ़ो, मैंने ये कट कर दिया, ये नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट है. सो ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं? सिर्फ एक, वो भी अगर ठीक है तो. सो फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे अब पूछा हुआ है, थर्ड रॉन्ग है. दोबारा स्टार्ट करें, जो जो बच्चे थे. इशिता, ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, विच एलिमेंट shows only positive oxidation state? Sir, iodine. Iodine means cesium नहीं. चलो मैं तेरा अलग से लिख रहा हूं, आयोडीन. थर्ड टाइम. इश्वीन. Yes, sir. हाँ जी, which element shows only negative oxidation state? Fluorine. Yes, Fluorine. fluorine. Very good. Fluorine only. Okay. हाँ जी. Yes, sir. Okay, ठीक है बच्चे. पार्थ, यस सर। which element shows both positive and positive and negative oxidation states? सर आयोडीन एंड नियॉन। ऑप्शन ही नहीं है, ओनली एलिमेंट नॉट एलिमेंट्स. सिंगल एलिमेंट, यू हैव टू चूज सिंगल. बोलो. सर आयोडीन। चलो मान लेता हूं आयोडीन, ठीक है. और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सब एग्री हो नियॉन पे? एक को तो कैंसिल करें. तो नियॉन ही है। Neon. नियॉन ही है, ठीक है. चलो इससे कैंसिल करते हैं, ये तो ठीक है. ठीक है, चलो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा. आयोडीन रॉन्ग है फर्स्ट में. आंसर इज सीजियम. Cesium shows only one oxidation state and that is of +1. It is alkali metal without exception.
being a alkali metal, cesium shows only +1 oxidation state. Only negative, this we have already done, ये भी करा था. Fluorine क्या है? -1. Reason being Most most electronegative. electronegative element. Not capable of losing electron, so it is capable of accepting electron only. -1 oxidation state. Both positive and Iodine. negative iodine. नेगेटिव कौन सा? -1 बिकॉज हेलोजन है. उसके अलावा +1 +3 +5 +7 प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. ठीक है, नोट कर लो इसे. तो अगर ये मतलब फ्लोरीन के साथ मतलब फॉर्म करे तो फिर मतलब ये इसके साथ प्लस वाली आएगी ना, किसके साथ? आयोडीन की फिर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी ना अगर वो फ्लोरीन के साथ करेगा. फ्लोरीन के साथ हाँ आयोडीन ना. क्योंकि सर वो ज्यादा हाँ जी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ है. जी बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ. ठीक है, अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो प्लस वाली आएगी. ठीक है, फ्लोरीन की तो वेरिएबल है ही नहीं है, फ्लोरीन की फिक्स्ड है. आयोडीन को ही एडजस्ट करना पड़ेगा. सो ये थे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन. अब है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, जो एक बड़ा क्वेश्चन होना है 3 to 5 मार्क्स, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स. ओके 1 सेकेंड स्टूडेंट, ना लिखो बैलेंसिंग, रुक जाओ, एक टॉपिक रह गया. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. proportionation reactions. P proportionation reactions. ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होता है? These are special type of reactions. Are those reactions in which one element undergo oxidation and reduction simultaneously. ठीक है, एक ही एलिमेंट है, उसी की ऑक्सीडेशन एंड उसी की रिडक्शन हो रही है. These reactions are known as disproportionation reactions. एग्जाम्पल देखो, ऐसे नहीं आइडिया लगेगा क्या चीज है ये. Consider this reaction H2O2 changes to disproportionate to H2O and O2. Balance this. Find the oxidation state of individual elements. In hydrogen peroxide, oxidation state of oxygen is -1. Find करके देख लो. बैलेंसिंग फैक्टर काउंट नहीं करने, बैलेंसिंग फैक्टर का कोई लॉजिक नहीं है वहां पे. -1, so -1 +1
oxidation state of oxygen here is is -2, just like in most of its compounds. Here it is 0. अब प्रूव करना है that it is a disproportionation reaction. क्यों है? Because -2 भी हो रही है -1 से, decrease in oxidation state of oxygen. ठीक है, सो क्या बना ये? Therefore it is reduction. यहां पे देखो, दूसरा देखो, -1 to 0, increase in oxidation state of oxygen, therefore oxidation. दोनों सेम हो रहे हैं ना, सो क्या लिख सकते हो? The above reaction is disproportionation reaction because oxygen is getting reduced and oxidized simultaneously. ठीक है, ऑक्सीजन की ही रिडक्शन हो रही है एंड ऑक्सीजन की ही ऑक्सीडेशन हो रही है. Therefore it is a disproportionation reaction. Okay with everyone? ठीक है ये? Yes, sir. Okay. एक एग्जांपल और देख लो. P4 plus OH negative changes to PH3 plus HPO2 HPO phosphorus H2PO2 negative. Three water भी थे to balance. इसे चेक करो that it is a disproportionation reaction. हिंट दे देता हूं, सिर्फ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, डिफरेंट हो रही है. एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन हो रही है. एक बार चेक करके देखो.
हाँ जी, हो गया। तनिष्का हुआ? Is it a disproportionation reaction? No. Panima? सर कर रही हूँ अभी। Okay. ऊपर डेफिनेशन लिख ली थी, पर डेफिनेशन जरूर लिख लें। बोलो भाई, एनीवन? डन? दुष्यंत तुम? P4 में कौन सी लेंगे किसके? ऑक्सीडेशन? P4 वाले में। जीरो प्योर है। प्योर ओ- इन प्योर स्टेट इट इज जीरो। ओके सर। सर ये नहीं होएगा फिर, नहीं होएगा। शायद मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं। P4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस की चेक करो इन PH3 X प्लस, माइनस। हाइड्रोजन इज -1, नॉन मेटल है, +1 सॉरी, इक्वल टू जीरो। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो X आ गया -3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस -3। यहाँ पे चेक करो, -1। इट इज X प्लस हाइड्रोजन इज 2, 1 प्लस X प्लस 2 इंटू -2 माइनस। इक्वल टू -1। सर यहाँ पे वो नहीं होएगा -1, 2 इंटू -1। नहीं जी, विद नॉन मेटल +1 होती है। नहीं सर, ऑक्सीडेशन इसकी ऑक्सीजन की माइनस क्यों? -2 होती है, वो -2 वाला होती है। टाइप का नहीं है जैसे वो होता है पेरोक्साइड। एक मिनट, अच्छा, एक सेकंड रुको। +1
हाँ अब बोल क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा था कि वो उसके जैसा नहीं It's लग रहा not कि जैसे peroxide. It is not पेरोक्साइड a की तरह। नहीं नहीं नहीं, it's not a peroxide. नॉर्मल है. +1. Oxidation state is +1. ओके So सर। it is a redox reaction. 0 to 3. फिर फिर क्या होएगा हुआ? डिक्रीज। रिडक्शन. और दूसरा भी देख लो. +1. ऑक्सीडेशन। Oxidation. So it is a disproportionation reaction. नोट कर लो इसे. ये बहुत फेवरेट है टीचर्स का, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देना. ठीक है, हो गया होगा थिंक. नेक्स्ट देखो, जो मेन टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, जो नेक्स्ट 2 3 4 लेक्चर्स में करना है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द redox reactions. Balancing of the redox reactions. मैं लिखो बैलेंसिंग of redox reactions. Can be done by 2 methods. First, oxidation number method. Number 2, ion electron method. ठीक है, first is ion oxidation number method, second is ion electron method. फर्स्ट एडिंग ही करेंगे. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एक और नाम है हाफ रिएक्शन मेथड. फर्स्ट हेडिंग बना लो बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इस मेथड को मैं एक एग्जांपल की तरह, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. कंसिडर दिस एग्जांपल. बैलेंस the following reaction
which takes place in acidic medium, which takes place in acidic medium. Example is मैं सेम एग्जांपल कॉपी कर रहा हूं जो एनसीईआरटी की है, सो दैट आप वो रेफरेंस भी ले लो अगर गलत हुई कोई। Cr2O7 2 negative plus SO3 2 negative changes to Cr3 positive plus SO4 2 negative. We will balance this reaction. Okay, important thing, this reaction takes place in acidic medium. इसका मतलब बताऊंगा क्या है, इसे करना कैसे है, हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन। बच्चे पहले ही ये चीज बता देता हूं, पूरे केमिस्ट्री कोर्स में इससे लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं है। 2 ईयर पूरे प्रोग्राम में लेंथी है, टाइम भी लगेगा, बट हाँ स्टेप ऊपर नीचे करोगे तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होएगा। स्टेप टू स्टेप करना है, लेंथ, ठीक है। पहले मैं फुल लेंथ करवाऊंगा, फिर 1-2 स्टेप्स कैंसिल करने हुए नेक्स्ट पार्ट में आप कर सकते हो। ओके, इसे देखो स्टेप स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, assign the oxidation number to each element and calculate oxidation नहीं calculate नहीं, and identify oxidation and reduction reactions। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जो हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे इस रिएक्शन में। देखो मेरे साथ करवाओ, ऑक्सीडेशन नंबर सभी के कैलकुलेट। फर्स्ट केस में क्रोमियम का, इसमें सल्फर का, इसमें क्रोमियम और लास्ट वाले में सल्फर। क्रोमियम देखो 2x 12 प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2, ठीक है। x आ गया +6, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर +6, हाईलाइट कर देता हूँ +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो x प्लस, सिर्फ 4 हाँ जी जो आ रहा है लिख दो, x इज 4 +4, क्रोमियम चलो +3 ही है, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं। सल्फर फिर फाइंड करो, +6
+6 गुड। सो ये रहे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स। लेबल कर दो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 से रिडक्शन आएगी। 3 हो रही है। दिस इज रिडक्शन। ओके। सल्फर की +4 से +6 हो रही है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज oxidation number of sulfur increases from +4 to +6। सर इसमें सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन देंगे हमको कि सिंपल भी दे सकते हैं? नहीं, सिंपल की तो होएगी नहीं, फिर क्या होगा? नहीं मतलब जैसे कल्ला रिडक्शन या कल्ला ऑक्सीडेशन। नो, ओनली रिडॉक्स। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 1। अभी आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है भी किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन, और उससे भी पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स के। हो गए? ओके, आई थिंक हो गया होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 देखो। कैलकुलेट, या कैलकुलेट की बजाय काउंट लिखना है। काउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। फिर से रिएक्शन द्वारा ये रिएक्शन लिख दी। ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करे हुए थे, ऑक्सीडेशन नंबर दे दो। इसका नंबर था 6, 3 है, 4, 6। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम decreases from +6 to +3, that is by 3 per atom of chromium, per atom of chromium।
यही है। एक बार चेक कर लो ठीक लिखा मैंने। पर एटम ऑफ क्रोमियम। दूसरा देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर decreases by 2 या decreases from decreases बोलो, increases from +4 to +6, +4 to +6, that is by 2, that is by 2. ओके लेकिन क्रोमियम के एटम्स देखो बच्चे कितने हैं टोटल। क्या टोटल डिक्रीज यही है? टोटल एटम है क्रोमियम के, चेक करो ध्यान से, 2। 2 तो इससे बैलेंस करने के लिए पहले 2 तो लगा ही लो, यहाँ पे बैलेंस हो जाए। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 6 से 3 हुआ था, 3 पर एटम हो गया। टोटल डिक्रीज कितना हुआ? 3 into 2, that is 6 per 2 atoms of chromium। सर ये 3 into 2 क्यों किया है? बच्चा रिएक्शन देखो, रिएक्शन में 2 क्रोमियम के एटम्स थे इसलिए, ठीक है। टोटल इंक्रीज कितने से हुआ? 2 से। टोटल डिक्रीज कितने से हुआ? 6 से। क्या ये इक्वल है? इज दिस, दोनों इक्वल नहीं है ना। ऊपर स्टेटमेंट रीड करो, काउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। कैसे इक्वल करेंगे? टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 बट टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। कैसे करेंगे इंक्रीज? अगर इक्वल करना है, मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 3, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसे मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन विद 1, ताकि टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज किसके इक्वल हो जाए? इट विल इक्वल टू 6। रीराइट द इक्वेशन बट 3 से मल्टीप्लाई करके। रिएक्शन देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव, अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3SO3 2 नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देख लो कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। पहले आपने इंक्रीज एंड डिक्रीज काउंट किया, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज काउंट किया, और फिर उनको इक्वल करा। कैसे इक्वल करा? बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, सल्फर इक्वेशन को विद 3।
ठीक है जी, स्टेप तक नोट कर लो अच्छे से। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल, यहां तक हो गया। नाउ बैलेंस द आयोनिक चार्जेस, अभी भी चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे इनके, वो बैलेंस करने हैं। बैलेंस द आयोनिक चार्जेस by adding H positive, by adding H positive। मुझे वैसे ऊपर वाला अभी तक पता नहीं लगा भी आपने कर लिया या नहीं। अब बैलेंस आयोनिक चार्जेस बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्यों ऐड करना है? बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस in acidic medium, that is why। So rewrite the equation, Cr2O7 2 negative plus SO3 2 negative changes to 2Cr3 positive plus 3SO4 2 negative। ओह, यहाँ पे भी 3 है। आयोनिक चार्जेस काउंट करो, मेरे साथ काउंट करना। इस पे टोटल चार्ज कितना है? -2। इस पे टोटल चार्ज कितना है? -6। जिसको नहीं पता लगा -6, यहां से देखो टोटल 3 सल्फाइड आयंस है, -6 है इस पे चार्ज। इस पे +6 -6। इस टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज कितना हुआ? -8। और राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज 0। कुछ लेके सर आ जो CR2O7 वाला है वहां पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं होएगा ऐसे जैसे इनमें किया है? एक ही तो है, अब एक ओके को सर। -2 से मल्टीप्लाई कर ला। अच्छा अच्छा। ठीक है, एक ही है वहां पे, इसको क्या मल्टीप्लाई यस कर। सर। ठीक है बच्चे, डाउट्स देख लो, लेके आओ। मैं बहुत साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे पता है डाउट्स होंगे। नहीं पूछोगे मैं बार बार वही बोलूंगा, रेफर टू वीडियो, रेफर टू वीडियो। सर थोड़ा सा ऊपर वाला एक बार स्टेप 2 समझा दो फिर से, थोड़ा सा ठीक से नहीं समझा। स्टेप 2 में पॉइंट जो ऊपर हेडिंग लिखी है ना, वही मेन चीज है जो ऊपर लिख रहा हूं मैं ब्लू पेन से। काउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ? सल्फर की इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 से +6, मतलब 2 से इंक्रीज हो रही है। वो 2 लिख दिया सर्कल में या ग्रीन सर्कल में, हाईलाइट भी कर देता हूं यहाँ पे ब्लू सर्कल। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम क्या है? वो है 3। बट प्रॉब्लम इज क्रोमियम का एक एटम नहीं है, क्रोमियम के एटम है 2। सो यू हैव टू कैलकुलेट टोटल डिक्रीज।
टोटल डिक्रीज कितनी होगी 3 इंटू 2 6। अब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से, डिक्रीज हो रही है 6 से। बैलेंस कैसे करें? टू बैलेंस दिस मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ सल्फर विद 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, सर सिर्फ सल्फर वाला पार्ट ही करना है? सिर्फ सर्कल वाला पार्ट मींस सिर्फ सल्फर वाला पार्ट ही करना है? ऑब्वियसली सिर्फ सल्फर वाला पार्ट ही मल्टीप्लाई करा है। ध्यान से देख रिएक्शन को। ओके सर, अगर अब ठीक है। सबसे सेम ही मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर कट ही हो जाएगा, फिर फायदा क्या मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, नो जो आप Yes, sir. देखोगे इस रिएक्शन को किसी भी तरीके से काउंट करो, इसमें एटम्स इक्वल हैं, बट सिर्फ एटम्स इक्वल हैं जैसे 10th में करते थे। चार्जेस इक्वल नहीं है अभी भी। अब चार्जेस इक्वल कैसे करोगे? चार्जेस इक्वल करने के लिए चार्जेस लिखो। पहले चार्जेस लिख लिए, एक साइड 0 आ रहा है, एक साइड +8 आ रहा है, ऐसा ही है ना ये कुछ। अब चार्जेस बैलेंस करने का जैसे तरीका दिखाया था, अभी चार्जेस बैलेंस कैसे करने हैं। चार्जेस बैलेंस करोगे बाय एडिंग H पॉजिटिव। यही बताया ना हाउ टू बैलेंस द चार्ज। यू आर चार्ज आपने बैलेंस करना है, आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, यू कैन ऐड ओनली H पॉजिटिव। किस साइड ऐड करना है वो मैं बताऊंगा, बट ऑप्शन सिर्फ यही है आपके पास और कोई नहीं है। यू हैव टू बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग H पॉजिटिव ओनली। ठीक है, एक साइड -8 है, दूसरी साइड प्लस या प्लस क्या 0 है। सो H पॉजिटिव कहां पे ऐड करोगे? सर 0 वाली लेफ्ट हैंड साइड। साइड पे। कितने करोगे? 8H पॉजिटिव, ताकि चार्ज कितना आ जाए -8 8H पॉजिटिव आ +8 जाएगा +8। टोटल चार्ज हो गया 0। ठीक है, चार्जेस हो गए बैलेंस। लास्ट स्टेप, ये बहुत ही शॉर्ट में समझाया, वैसे तो 7 स्टेप्स में करवाता होता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा वर्चुअल क्लास के कारण थोड़ा श्रिंक कर दिया क्वेश्चन को। स्टेप 4, balance the H positive ions by adding appropriate number of water molecules। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। देखो सेम रिएक्शन दोबारा लिखो, Cr2O72 नेगेटिव +3SO32 नेगेटिव +8H पॉजिटिव changes to 2Cr3 positive +3SO4 2 नेगेटिव। अब 8 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरी साइड तो हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, 4 वाटर ऐड कर दो ताकि 8 हाइड्रोजन पूरे हो जाए। अब इस रिएक्शन को किसी भी तरीके से काउंट कर लो, नंबर वाइज, चार्जेस वाइज, कैसे भी, दिस रिएक्शन इज नाउ कंप्लीटली बैलेंस्ड।
So this reaction is now completely balanced. Okay. चलिए बस यहीं तक ही था फिर। हाँ जी, हो गया बैलेंस। दिस वन इज बैलेंस्ड। ओके सर। ठीक है, ये हमने एक मेथड करा है वो भी एसिडिक मीडियम में, फिर इसी मेथड से करेंगे इन बेसिक मीडियम। ठीक है, और फिर इसी मेथड से फिर डिफरेंट मेथड से करेंगे इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। सो टोटल 4 डिफरेंट क्वेश्चंस टेक अप करने हैं। सर H2 ऐड करने से वो नहीं होता फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज वगैरह? नो। ओके सर। आप किसी भी तरीके से इसे चेक करके देखो, ये बैलेंस्ड है। 4 चेक कर लो, कोई भी एटम चेक कर लो। ठीक है, सो अब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं किसी ने लगाना, लगाओगे तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे। कंप्लीट लिखना है पूरा। ओके, यस सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसे करते हैं। Thank- एक बार मैं ऐसा लेक्चर अपलोड करूंगा, गो विल गो थ्रू दैट। ठीक है, उससे भी देख लेना। मुझे पता है अभी पता नहीं बोल नहीं रहे हो, या तो ज्यादा ही कुछ ऑल क्लियर हो गया है, बट चेक कर लेना। ओके, थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. कमेंटो, एक कमेंटो।